Yes, dear students, today we will revise chapter Governing Ourselves. Beta, as all of you know that India is group of 28 states and 8 union territories. Union territories को हम short form में क्या बोलते हैं? UT. बेटा, इंडिया क्या है? इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. बेटा, India is a vast country. It is not easy to run the administration of such a vast country. So, beta, that's why we adopt two types of government. That's why we adopt two sets of government. Number one, central government, and number two, state government. Dear students, central government make laws for the whole country, and state government look after the needs of the people of the state and also make laws for the state. So beta, our constitution, beta, Indian constitution was adopted on 26 January 1950. Beta, Indian constitution is world lengthiest constitution. Lengthiest constitution मतलब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का. And Indian constitution is written constitution. Each and everything is written in our constitution. What are the power of central government? What are the power of state government? What are the power of president, prime minister, vice president of India? Each and everything is written in our constitution. But now the question raised, what is government? I am talking about central government, state government. But what is government? Because government is a group of people having power and authority to run the administration of the country. बेटा कुछ लोगों का समूह होता है, in Hindi we can say that, कुछ लोगों का समूह होता है जिनके पास शक्ति होती है, ठीक है, जिनके पास शक्ति होती है देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की. ठीक है. What is government? Government is a group of people having power and authority to run the administration of the country. And beta, what are the function of the government? Beta, government run schools, colleges. आपने गवर्नमेंट स्कूल के बारे में सुना होगा ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस and government and also run hospitals. So government also run school, colleges and hospitals. So what is government? Government is a set of, yes, government is a group of people having power and authority to run the administration of the country. And in India, we adopt two types of government. Central government make laws for the entire country, and second is state government. Listen, students, from tomorrow it's compulsory to bring your water bottle, right? That will be safe. You can refill your water bottle from the water tap, but don't drink water with hand from there, right? Okay, beta. Beta, from tomorrow onward, it is compulsory to all of you to bring your own water bottle. Okay? Yes, beta. And next is beta. Now question raised, beta. And what are the function of the government? The function of the government is to maintain law and order. देश में law and order को बनाए रखना, ठीक है. Protect people's freedom. Protect people freedom, लोगों की आजादी की रक्षा करना, ठीक है. These are the main function of the government. Now question raised, who make laws for the country? Now question raised, beta, who make laws for the country? Beta, listen carefully. Who make laws for the country? Parliament make laws for the country. And beta, Parliament consists of two houses. Beta, Parliament consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliament consists of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and President of India.
Beta, now all of you listen very carefully. Beta, Lok Sabha. First of all, we will discuss about Lok Sabha. Beta, Lok Sabha is called lower house of the parliament. It is also known House of People. Why it is called House of People? Because members of Lok Sabha are directly elected by the people. Beta, member of Lok Sabha are directly elected by the people. Beta, in India, any person who attained the age of 18 years or above get right to vote without any discrimination. बेटा भारत में कोई भी आदमी जिसकी उम्र 18 साल की हो जाती है उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना किसी भेदभाव के he or she get right to vote. It means whether that person is rich, poor, literate, illiterate, वो किस जात से बिलोंग करता है, he belongs to which, ये doesn't matter कि वो किस जात का है, किस धर्म का है, ये कोई मैटर नहीं करता. He or she get right to vote. बेटा in and the maximum number of seats in Lok Sabha can be 552. 552 maximum seats हो सकती हैं. But at present we have only 545 seats in Lok Sabha. Out of 545, 543 seats are elected by the people, and on the 2 seats, President of India appoint. Beta, on the 2 seats, President of India appoints the 2 persons of Anglo-Indian community. It means Lok Sabha has 545 house. Lok Sabha is called House of People. Lok Sabha is called lower house. Beta, all the India, our country, beta, how members of Lok Sabha are elected? Beta, whole country, whole India is divided into smaller units. Whole India is divided into smaller units. Beta, we elect at present we elect 543 members. Beta, to elect 543 members, the whole India is divided into 543 parts, and each part is known as constituency, and each part is known as constituency. And beta, in India we have multi-party system. In India we have multi-party system. Beta, on each seat, members of different political party contest election. Beta, but the person who get the maximum seats, maximum votes is declared winner. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो विनर डिक्लेयर होता है. So beta, in this way हमने ऐसे करके हर सीट से हम कितने मेंबर्स चुन लेते हैं? 543 मेंबर्स चुन लेते हैं. बेटा, these 543 members अपने में से एक क्या इलेक्ट करते हैं? स्पीकर इलेक्ट करते हैं. जैसे आपकी क्लास में आपसे मॉनिटर इलेक्ट करते हैं ना हम, इन द सेम वे बेटा these 543 members elect speaker, one speaker, and beta, the function of the speaker is to maintain discipline in the Lok Sabha and beta and preside the meeting of Lok Sabha. Preside the meeting of Lok Sabha. Lok Sabha की जो meetings है उनको चलाने का काम करते हैं. ठीक है बेटा? So बेटा, in India any person who attain the age of 18 years get right to vote without any discrimination, and any person who attain the age of 25 years can contest the election of Lok Sabha. ठीक है? Can contest the election of Lok Sabha. कोई भी आदमी जिसकी उम्र 25 साल है, 25 साल से ऊपर है, can contest the election of Lok Sabha. लोक सभा का इलेक्शन वो लड़ सकता है बेटा. बेटा, now move on राज्य सभा. Now question raised, बेटा, राज्य सभा is called upper house of the parliament. राज्य सभा is called upper house of the parliament. Beta, the main difference between Lok Sabha and Rajya Sabha is that in Lok Sabha members are directly elected by the people, but in Rajya Sabha members are not directly elected by the people. Member of state legislative assemblies, listen carefully. Member of state legislative assembly elect member of Rajya Sabha. Clear beta? Member of all the state legislative assemblies elect the member of Rajya Sabha. This is the main difference. And beta, the tenure of Lok Sabha is 5 years.
It means member of Lok Sabha are elected for 5 years, whereas member of Rajya Sabha are elected for 6 years. And 1/3 member of Rajya Sabha got retired after every 2 years. 2 साल के बाद 1/3 members क्या हो जाते हैं, retired हो जाते हैं. And beta, at present we have 250 members of Rajya Sabha. At present we have 250 members of Rajya Sabha. Out of 250, 238 members are indirectly elected and 12 members are nominated by the President of India. Beta, 12 members are nominated by President of India. In Lok Sabha, President nominated 2 members of Anglo-Indian community. But in Rajya Sabha, President nominate 12 members. बेटा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, जिनकी वजह से देश का नाम ऊपर हुआ है, उन 12 पर्संस को क्या कहते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर. एंड बेटा द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 6 years and 1/3 member retire after every 2 years. So beta we have studied about Lok Sabha and Rajya Sabha. Beta any bill become beta any कोई भी बिल, any bill can introduce either किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है. बेटा बिल क्या होता है, जब हमने एक नया कानून बनाना है, सपोज करो कि जो वोटिंग एज है वो 18 ईयर से बदलकर 20 साल कर दी जाए. सपोज करो हमने एक नया कानून बनाना है कि जो वोटिंग की एज है 18 साल की जगह उसको 20 साल कर दी जाए. तो पहले हम उसको डॉक्यूमेंट पे लिखेंगे, है ना, पेपर्स के ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना. फिर हम वो जो पेपर्स हैं वो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करेंगे. बेटा जब वो कोई जब कोई नया कानून बनता नहीं है, लेकिन बनने से पहले जब वो पेपर्स के ऊपर होता है, दैट टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, बिल. दैट टाइम उसको क्या बोलते हैं, बिल. और बेटा जो इस तरीके के बिल होते हैं वो हम किसी भी हाउस में पहले पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में. बट पास होना दोनों में जरूरी है. अगर पहले लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा. अगर राज्यसभा में पहले आया तो राज्यसभा से पास होकर किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा. देन प्रेसिडेंट साइन दैट बिल, फिर प्रेसिडेंट उनको साइन करेंगे एंड देन दैट विल बिकम लॉ. और फिर वो क्या हो जाएगा, लॉ हो जाएगा. सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने वोटिंग एज इंक्रीज करके सपोज करो 20 इयर्स करनी है. फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा. राज्यसभा में फर्स्ट टाइम बिल इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा मेंबर से यस. अगर मोस्टली मेंबर्स ने यस कह दिया देन बिल मूव्स टू लोकसभा. लोकसभा में भी मोस्टली मेंबर्स ने यस कह दिया, so it means bill is passed in both the houses, then bill is sent to president for the signature. और फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे, देन दैट बिल बिकम लॉ. तो और वोटिंग एज कितनी हो जाएगी, 18 से चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 20 ईयर. क्लियर हाउ एनी बिल बिकम लॉ, कैसे नए कानून बनते हैं, पता चला आपको. बेटा नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. वो फर्स्ट सिटीजन होता है हमारी कंट्री का. प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री. बेटा प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑल्सो. बेटा इन इंडिया member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha and member of all the state legislative assembly. Beta in India we have 28 states. It means 28 state legislative assembly. हर state की legislative assembly अपनी अलग होती है. So beta member of all the 28 state legislative assembly, member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha elect president. And beta member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha, member of state legislative assembly together, when they together sit to choose the president, they are called electoral college. क्या बोलते हैं उनको, electoral college. बेटा member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha, member of all the state legislative assembly together called electoral college, and they elect the president of India for the term of 5 years. बेटा एंड कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन नहीं होती. एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत का पहला नागरिक है.
He is Supreme Commander in Chief of Indian Army, and at present, Mr. Ramnath Kovind is the President of India. Beta, any confusion? Ramandeep, stop talking. Indian Army. Yes. बेटा देखो, गुड क्वेश्चन, स्मार्ट ने क्वेश्चन पूछा बेटा कि अगर बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा, तो क्या वो बिल वापस जा सकते हैं? बेटा देखो, मोस्टली क्या होता है कि इन लोकसभा बिल के ऊपर खूब डिस्कशन होती है, 543 मेंबर्स आर्गुमेंट करते हैं उसके ऊपर, राज्यसभा में 250 मेंबर्स आर्गुमेंट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बिल में जब बहस के दरमियान कुछ चीजें निकल जाती है, कुछ चीजें ऐड हो जाती है लोगों की सजेशन से, तो अधिकतर जो बिल है वो गुड बन हो जाता है। लेकिन अगर कुछ कमी रह जाती है बाय चांस, जब वो प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट उसको रीड करता है, उनको लगता है कि इसमें कुछ और एडिशन होना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं कि आप इसमें कुछ और मेरे हिसाब से इसको दोबारा से देख लो, इसमें ये बातें विचार कर लो। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की पोस्ट इतनी बहुत बड़ी होती है बेटा, तो जैसे अगर हमें कोई काम प्रिंसिपल मैम बोलते हैं करने के लिए, हम वैसे करते हैं ना, इन द सेम वे फिर अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोलते हैं कुछ ऐड करने के लिए, तो वो कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर साइन हो जाते हैं, ठीक है। Move on next beta, forming of government. How government was formed? How government are formed? Governments कैसे बनती है, ठीक है ना, सरकारें कैसे बनती हैं? How Prime Minister of India elect, ठीक है ना। अब हमने पढ़ने लगे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं बेटा। वी स्टडीड अबाउट लोकसभा, वी स्टडीड अबाउट राज्यसभा, वी स्टडीड अबाउट प्रेसिडेंट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट। बेटा लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। इसमें यही लिखा ना बेटा, फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। फॉर्मिंग द गवर्नमेंट मींस बेटा यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको, हाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट। बेटा इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन होते हैं आपने देखा होगा, कभी आपके घर में आप वाले आ रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बेटा देयर आर लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंडलेस। भारत में बहुत लंबी लिस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज। बेटा व्हेन होता क्या है इन इंडिया में, व्हेन इलेक्शन टेक प्लेस, बेटा any person who attained the age of 25 years, if he wants to fight election, वो लड़ सकता है। अगर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रहती है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे को टिकट दे रही, मान लो है ना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया कि मोना हांची, कांग्रेस वालों ने बोल दिया कि आप जलंधर से इलेक्शन लड़ लो, तो ठीक है। लेकिन अगर मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, और मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ूंगी। कैसे लड़ूंगी? एज अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ूंगी कि मैं अपना, मेरा नाम आएगा वहां पर और मैं अपना कोई भी पॉलिटिकल सिंबल, कोई भी अपना सिंबल बना लूंगी, ठीक है ना, और मैं उसमें लोगों को प्रचार कर दूंगी कि ये मेरा पॉलिटिकल सिंबल है और आप इस पे वोट लगाओ, है ना। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज इन इंडिया वी हैव डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? बेटा अब्राहम लिंकन वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ही गेव द फेमस definition of democracy. Democracy is a government of the people, for the people and by the people. It means democracy is a government of the people. लोगों की सरकार है, for the people, लोगों के लिए काम करती है, and by the people, और लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लोग ही वोट डाल के चुनते हैं, लोगों के लिए ही काम करती है वो, और जो वो मेंबर होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारे एरिया के लोग ही तो होते हैं, ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी, बेटा लर्न दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको 10th तक काम आएगी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बच्चे उल्टा लिख देते हैं हमेशा, यही प्रॉब्लम आती है। ऐसे लिख देते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। देन इट इज रॉन्ग। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल।
एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो वर्ड हमें कोई कहता है, जब ये अब्राहम लिंकन के कहे हुए वर्ड है, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जब हम किसी के कहे हुए शब्दों को बोलते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपको इंग्लिश में भी पता होगा, पर पता है ना, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रख के लिखते हैं हम। तो बेटा अब बेटा क्या होता है इन द लोकसभा, द होल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। पूरे इंडिया को हमने छोटे छोटे एरिया में बांट दिया, कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर बेटा पूरे इंडिया, जो हर एरिया से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो पर्सन खड़े हुए इलेक्शन के लिए, एंड द पर्सन दैट गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड विनर। जिसको ज्यादा वोट्स मिली वो विनर डिक्लेयर हो गया। इन दिस वे वी इलेक्ट 543 मेंबर्स। बेटा नाउ द पार्टी दैट गेट्स मैक्सिमम सीट, वो पार्टी जिसको मैक्सिमम सीट्स मिली है। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, ए बी सी एंड डी। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आई एम टेकिंग पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी एंड पार्टी ई। Out of what is the result of 543 seats? First political party got 300 seats. Close करो, 300 seats, 350 seats. Clear? Second political party got 100 seats. Third political party got 50. Next got 20. Then got 3. अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सीट्स ले ली। अब टोटल कितना हो गया, 543। नाउ दिस पार्टी ए पार्टी गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। आफ्टर वॉचिंग द रिजल्ट, नो बेटा, आफ्टर वॉचिंग द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, ठीक है, रिजल्ट इलेक्शन का देखने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल the leader of A party to form the government. Because why he called the leader of A party to form the government? Because A party got maximum number of seats. Beta, President of India called the leader of A party to form the government because A party got maximum number of seats. B party को नहीं मिली, C को नहीं, D को नहीं, E को नहीं। Beta, the party that got maximum number of seats will be called by President of India to form the government. And बेटा अब ये 350 मेंबर है, इन 350 मेंबर्स का जो लीडर होगा, लिसन केयरफुली, इन 350 मेंबर्स का जो लीडर होगा, he or she will become the prime minister of the country. वो क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री बनेगा और बाकी लोगों की सरकार बनेगी। एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट सम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट हिम। बेटा प्राइम मिनिस्टर cannot do all the work alone. अपने आप अकेले काम नहीं कर सकते। जैसे प्रिंसिपल मैम अकेले स्कूल नहीं चला सकते, she take the help of different subject teachers. In the same way प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, irrigation minister, industry minister, there are several ministers. He appoints several ministers to assist him. Clear बेटा, यहाँ तक क्लियर है? आपको पता चला प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं बेटा। बट सम टाइम सिचुएशन बेटा आपको पता है कि आउट ऑफ, अगर हमारे देश में क्या है कि अगर सरकार बनानी है तो 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। 2/3 मेजोरिटी मतलब अगर 300 सीटें हैं तो उसमें से 200 सीटें उस पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 में से 2 सीट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 300 सीट्स, वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना सकती है जिसके पास 200 सीट्स होंगी, ठीक है। अब सपोज करो 543 में से अगर हमने ये लिया नंबर तो ये सही है नंबर। अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिस पॉलिटिकल पार्टी के, मान लो जो हाईएस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास 250 सीट्स है बेटा, आउट ऑफ 543 250 सीट्स कम सीट्स है, क्योंकि हमें 3 में से 2 चाहिए, यानी कि 300 में से 200 चाहिए।
300 में से 200 चाहिए तो 543 में से 250 सीट्स कम है। समझ में आ रहा है? तो अब ये सरकार नहीं बना सकती। अब क्या है कि और हमारे पास दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे पास और पॉलिटिकल पार्टीज है। अब हमारे पास ये पॉलिटिकल पार्टी है, अब हमारी ये पिक्चर है। अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, फिर से ए पार्टी के लीडर को बुलाएंगे और कहेंगे फॉर्म द गवर्नमेंट, बट यू हैव लेस नंबर, लेकिन आपके पास कम नंबर है, और उनको डेट दे देंगे। जैसे सपोज करो आज है 11 डेज, उनको 10 डेज का टाइम दे देंगे कि ऑन द 20th, ठीक है ना, 20th को लोकसभा में वोटिंग होगी, और तब आपके पास जितना नंबर रिक्वायर्ड है ना उतना नंबर होगा तो यस बेटा, लुक है बेटा, नाउ अब ये वाली पोजीशन आ गई है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास रिक्वायर्ड सीट्स नहीं है। फिर क्या होगा, अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड द लीडर ऑफ ए पार्टी एंड गेव हिम 10 डेज टाइम, 10 और 15 डेज, ये राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो कितने दिन का टाइम देंगे। वो बोलेंगे आपकी आजादी 11 डेट है, आपने 20 को अपने 7 बाकी मेंबर्स को प्रूव करना है कि आपने नंबर, अपना जो पूरा नंबर है वो दिखाना है। अगर 20 डेट को पूरा नंबर नहीं होता तो जो ए पार्टी का लीडर, जो ए पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ना, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? उनको रिजाइन करना पड़ेगा कि अगर उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो ए पार्टी को रिजाइन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टरशिप से, और उनके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा। बेटा अब ए पार्टी के पास, ए पार्टी क्या करेगी, ए पार्टी बी पार्टी से बोलेगी कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। सपोज करो बी वाले मना कर देते हैं, फिर वो किसके पास जाएगी, सी वाले के पास जाएगी। सपोज करो सी वालों ने भी मना कर दिया, ठीक है ना, तो फिर वो किसके पास जाएगी, डी वालों के पास कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, फिर वो ई वालों के पास जाएगी। इनमें से सपोज करो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी हाँ कर लेती है। सपोज करो बी पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया ठीक है हम दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, नंबर पूरा हो गया, 350 हो गया नंबर, सरकार बन सकती है, तो फिर सरकार बन जाएगी। अब क्या है, सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं मानेंगे तो देश में दोबारा इलेक्शन है, ठीक है। अब मान के ए पॉलिटिकल पार्टी मान गई, ए पॉलिटिकल पार्टी और बी पॉलिटिकल पार्टी में एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाएंगी। तो बेटा व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी गेट मेजॉरिटी, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, देन सम पार्टी टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, कुछ पार्टीज टुगेदर मिलकर सरकार बनाती है, दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। अब ए और पार्टी ने, ए और बी ने मिलकर सरकार बनाई, ये कौन सी सरकार हुई, कोलिशन गवर्नमेंट हुई। कौन सी सरकार हुई, कोलिशन गवर्नमेंट। बेटा आपकी बुक में क्लियर कट कंसेप्ट दिया हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट का। बेटा when no party gets a majority, then many parties come together and form the government, this is called coalition government। बेटा क्लियर है, एग्जांपल कोलिशन गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, दो पार्टीज ने मिलकर सरकार बना ली, तो ये क्या होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। हाँ जी बेटा, हिस्ट्री बेटा, अब हाँ जी, हिस्ट्री ने क्वेश्चन बोला ए और बी ने मिलकर सरकार बनाई, ठीक है, तो अब पीएम कौन बनेगा, पीएम वही बनेगा जिसके पास मैक्सिमम सीट्स है। मैक्सिमम सीट्स तो अभी भी 250 ए पार्टी के पास ही है ना, इसलिए पीएम वही बनेगा जो ए पार्टी का। बेटा आपको एक बात बताऊं, इन 1998 अटल बिहारी वाजपेयी वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, उनके पास भी जो उनको वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी दैट टाइम इन 1998, वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन उनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं था, 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। उन्होंने जो उनको राष्ट्रपति ने टाइम दिया कि आपने इस डेट तक अपना मेजॉरिटी को सिद्ध करना है,
फिर लोकसभा में उस दिन वोटिंग हुई, सिर्फ एक वोट कम थी उनके पास, सिर्फ एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट कम थी, जितनी सीटें चाहिए थी उससे सिर्फ एक सीट कम थी। लेकिन एक सीट कम थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर है तो वो उनको आगे बढ़ा देंगे। नो, अगर एक भी सीट कम है तो प्रधानमंत्री को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा था अपनी पोस्ट से, और उनके साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ा था, और फिर देश में दोबारा से इलेक्शन हुए। समझ में आया? अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं होती, सपोज करो ए कहती है नहीं, बी कहती है मैंने भी नहीं आपके साथ मिलना, सी कहती मैंने भी नहीं, डी कहती मैंने भी नहीं, ई कहती मैंने भी नहीं, फिर क्या होगा? दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होगा, दोबारा इलेक्शन। जब इस तरीके से होता है ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, इसको बोलते हैं हंग्ड पार्लियामेंट। हंग्ड पार्लियामेंट मींस किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली। क्लियर बेटा? एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट? हाँ जी स्मार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही टाइम है। नहीं 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 नहीं, ये टाइम होता है उनके पास पार्टीज को मनाने का। बेटा कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, कि हमें लगता नहीं है कि हमारे अच्छे रिजल्ट आएंगे, है ना? जैसे कई बार हमें खुद से पता होता है ना, हमने पहले कितनी तैयारी की, हमें पता होता है इस बार हमारे नंबर अच्छे आने वाले नहीं, पता होता है ना? तो इन द सेम वे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को पहले से पता होता है कि इस बार हमारे ज्यादा अच्छे नंबर, ज्यादा हमें सीटें नहीं मिलने वाली, तो वो क्या करती है, पहले ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ समझौता कर लेती है, इलेक्शन होने से पहले ही समझौता कर लेती है कि जितनी तेरी सीट्स आएंगी, जितनी मेरी सीट्स आएंगी, हम दोनों मिलाकर अगर बन सकती होगी तो सरकार बनाएंगे, पहले ही समझौता कर लेती है। समझ में आया? ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्शन के बाद ही करे, इलेक्शन से पहले भी कर लेती है। समझ में आ गई बेटा इतनी बार? नाउ मूव ऑन स्टेट गवर्नमेंट। नाउ आपको पता चल गया हाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड इन द बेटा एट द स्टेट। बेटा एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बेटा हर स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दैट इज आल्सो नोन एज विधानसभा। इसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा भी कहते हैं। बेटा आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, जो भी जहां भी रहते हैं, बेटा वो हर 5 साल में 3 बार वोट डालने जाते हैं। एक बार प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, तीसरी बार जो हमारी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, जैसे जलंधर में होते हैं ना मेयर के इलेक्शन होते हैं, मेयर चुना जाता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। बेटा आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ पंजाब। बेटा आपको स्टेट गवर्नमेंट समझाने के लिए आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ पंजाब। बेटा इन पंजाब देयर आर 117 सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पंजाब में कितनी है सीट्स है? 117। बेटा these seats are fixed according to the population of the state. बेटा उत्तर प्रदेश हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स क्या है? ज्यादा है। गोवा में कम है पॉपुलेशन, तो गोवा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है वो कम है। बेटा सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। एट प्रेजेंट इन पंजाब वी हैव 117 state legislative assembly seats. Beta, during the state legislative assembly election, whole Punjab is divided into 117 parts. ठीक है? Each smaller part is called constituency. क्या कहते हैं? Each smaller part is called constituency. Again, same procedure is followed. Political candidate of different party contest the election from each seat. अलग-अलग हर सीटों से different political party के candidate खड़े होंगे. The candidate that gets the maximum number of seat is declared winner. वो क्या हो जाएगा? विनर डिक्लेयर हो जाएगा। अब बेटा अब आउट ऑफ 170 सेम प्रोसीजर है, स्टेट गवर्नमेंट समझा रही बेटा, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी, अगेन वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए बी सी एंड डी पॉलिटिकल पार्टी। इफ वन पॉलिटिकल पार्टी गॉट 80 सीट्स, सेकंड पॉलिटिकल पार्टी गॉट 20, थर्ड गॉट 10, D got 7. So then क्या होगा?
Which political party got maximum number of seats? A political party got maximum number of seats. Beta, at the central election, president called the leader of majority party to form the government. But at the state legislative assembly election, बेटा नेशनल लेवल के इलेक्शन में प्रेसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल के इलेक्शन में गवर्नर कॉल द लीडर ऑफ ए पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. बिकॉज यहाँ पर स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है ना. तो बेटा गवर्नर कॉल द लीडर ऑफ ए पार्टी. गवर्नर ए पार्टी के लीडर को बोलेंगे आओ अपनी सरकार को बनाओ. ठीक है. तो फिर जो ए पार्टी का लीडर होगा, द पर्सन हु इज लीडर ऑफ ए पार्टी विल बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. वो क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बन जाएगा. क्लियर बेटा? नाउ द क्वेश्चन रेज, हु इज गवर्नर? बेटा गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बेटा हर स्टेट के जो गवर्नर है वो कौन बनाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन बनाते हैं? हु अपॉइंट द गवर्नर्स? President of India. Yes, who appoint the governor of the state? President of India. At the state level election, who call the leader of majority party to form the government? Governor call the leader of majority party to form the government. बेटा लास्ट मूव ऑन जुडिशरी. लास्ट हमारा रह गया जुडिशरी. बेटा भारत कोई भी कंट्री हो, वहां पर 3 ऑर्गन काम करते हैं. कितने ऑर्गन काम करते हैं? 3 ऑर्गन मेन काम करते हैं. फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर मीन कानून बनाना. पहले कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ जाती है. ठीक है. लेजिस्लेचर